Hello, everyone. Good evening to all of you. Hello. This is Dr. Lai Pathak here, co-founder of Precise Care and a musculoskeletal physiotherapist. So आज मैं आप सब लोग की होस्ट हूँ फॉर द वेबिनार एंड हमारी आज की स्पीकर है आर इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर साइली म्हात्रे. She has done her MPT from Nair Hospital, Mumbai. Along with that, she has also done various courses in COMT, kinesiotaping, NDT, and many more other things. She has been with us for more than 6 months now, and today we all are going to know a little more about understanding sciatica. And for this, I would like to thank Dr. Saili for giving us your valuable time. Okay, and before we start, मुझे आप सब लोग को एक चीज़ बताना है कि in the chat box I have shared a link जहाँ से आपको एक WhatsApp group Understanding Sciatica का group मिलेगा. In this you can since you know हमारा ये chat box एक temporary है, but even though if you have any doubts or anything, those all will be answered via that group. ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब वो ग्रुप ज्वाइन कर ले. ऑल्सो अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक तो प्लीज डू रजिस्टर ऑल्सो सो दैट हमारे पास आपकी एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसके ऊपर अगर हमें आपको कुछ सेंड करना हो रिलेटेड टू द वेबिनार तो हम सेंड कर सकते हैं. द ग्रुप इज ऑल्सो यूज फॉर द सिमिलर थिंग. आपको ये वेबिनार के ऊपर के जो भी इंसाइट्स है वो ग्रुप में मिल जाएंगे. सो प्लीज डू ज्वाइन दैट ग्रुप. Okay, then over to you, Dr. Saili, and everyone. Let's understand what sciatica means. Okay. Thank you for the introduction, Dr. Lai. It was beautiful. So, good evening, everyone. I'm Dr. Saili Mhatre, Senior Physiotherapist at Precise Care. So, I'm the speaker for today's webinar. So, sciatica. So, I'll just give you a brief walkthrough through our webinar कि हम क्या-क्या cover करने वाले हैं. So, first of all, we'll learn about what sciatica exactly is. The term sciatica, उसका exact meaning जानेंगे. Then we'll move on to the causes and किस वजह से होता है. आपके डेली लाइफ में क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं. Then we'll move on to debunking a few myths, like a few myths that are relevant in the general population and क्या actual उसका fact है. Then we'll move on to the treatment strategies and how we as physiotherapists can help you with it. Okay, so let's start with the webinar. I'll just share my screen. Okay. Is the screen visible, Dr. Lai? Yes, the screen is visible. Okay, sure. Let's dive into what sciatica is. So first, to know about sciatica, we need to know about the sciatic nerve. Sciatic nerve, it is the longest and thickest nerve in the human body. अपने जो कमर के वर्टेब्रास होते हैं, the spinal lumbar vertebrae as we call them, वहां से बहुत सारी nerves बाहर आती है. So sciatic nerve is one of them. तो sciatic nerve कहाँ से जाती है. It travels through the pelvis, like the hip region, then down to the back of each leg, that is the thigh, calf, foot. पूरे hip से, कमर से लेके foot तक वो जाती है nerve. So जब भी ये nerve compress होती है और it gets irritated by some cause, the condition is that condition is called as sciatica. Okay. So sciatica refers to the pain that radiates along the sciatic nerve. Now sciatica एक खुद में कोई condition, कोई disorder, disease नहीं है. It is a symptom. बिकॉज sciatica किस वजह से हो सकता है वो हमें पहले जानना पड़ेगा. सो इफ इट कैन बी कॉज ड्यू टू herniated disc, spinal stenosis, ये सब में हम और डिटेल में जानेंगे. बट इट इज अ सिम्टम ऑफ ऑल दिस. सो टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स दैट आपको sciatica है करके. सो फर्स्ट इज रेडिएटिंग लेग पेन. लाइक आई सेड कि बटक से लेके थाई के
पिछले वाले हिस्से से, देन थ्रू द काफ या फुट, पूरा एक तो लेग पेन हो सकता है, यार समटाइम्स इट इज ऑल्सो कि मिडवे तक, मतलब सिर्फ थाई तक सिम्टम्स आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है. देन इन सम केसेस अगर थोड़ा सिवियरिटी ज्यादा हो तो पेशेंट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस थोड़ा नमनेस, टिंगलिंग, मतलब मूंगी जैसा सेंसेशन आता है ये. देन देर इज ऑल्सो मसल वीकनेस कि हैमस्ट्रिंग्स मतलब थाई मसल्स या फिर काफ मसल्स या फुट मसल्स में वीकनेस हो. अगर बहुत सिवियर है इसका इंटेंसिटी तो फुट ड्रॉप भी होता है कि चलते वक्त द पेशेंट इज नॉट एबल टू लिफ्ट द फुट. Then low back pain is also a symptom. Now low back pain in case of sciatica, बहुत बार ऐसे हमने ऑब्जर्व किया कि लो बैक पेन इज लेसर देन द लेग पेन. ओके, देन sciatica also worsens with movement. मतलब अगर नीचे झुके या फिर बहुत देर तक बैठे रहे, बहुत देर तक चले तो इट द सिम्टम्स वर्सन. एंड इन सिवियर केसेस इवन कॉफिंग, स्नीजिंग जैसे forceful simple short activities maybe the sciatic nerve gets irritated and it causes sciatica. Okay, so these were the symptoms that we have covered. Yeah, and then we have also seen कि लोग बोलते हैं कि मतलब मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे sciatica है. Sciatica has been like a misused term. मतलब every leg pain is not sciatica. This is the core of our webinar today actually. कि एवरी लेग पेन इज नॉट sciatica. यू नीड टू डायग्नोज कि आपका लेग पेन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, एंड देन गो अबाउट द ट्रीटमेंट. सो लेग पेन्स कैन ऑल्सो कम फ्रॉम मसल स्ट्रेन्स. सो मसल स्ट्रेन मतलब अगर हैमस्ट्रिंग मसल जो है, जो थाई के पीछे रहता है, उसका स्ट्रेन आया तो वहां पे पेन हो सकता है, विच इज सिमिलर टू द लोकेशन ऑफ sciatic पेन बट इट इज नॉट sciatic पेन. देन जॉइंट आर्थराइटिस की हिप नी किसी में भी आर्थराइटिस है तो वो रेफर हो सकता है पेन. देन द मोस्ट कॉमन थिंग दैट पीपल कंफ्यूज इट विथ इज वैस्कुलर इश्यूज. सो वैस्कुलर इश्यूज में क्या होता है कि वैस्कुलर पेन एंड sciatic पेन आर वेरी सिमिलर, बट कुछ चीजें हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करती है. द फर्स्ट थिंग इज कि कॉज. वैस्कुलर पेन तभी होता है जब भी पैर की कोई आर्टरी में वगैरह अगर इश्यू है तो वहां पे पुअर सर्कुलेशन की वजह से क्रैम्पिंग जैसा पेन होता है. एंड sciatica में व्हाट हैपेंस इज द नर्व, द sciatic नर्व अगर वो कहीं पे भी दब रही है या इरिटेट हो रही है, उसकी वजह से स्ट्रेचिंग पेन आता है, जैसे खींच रहा है ऐसे लगता है पैर. Then another type of pain is referred pain from sacroiliac joint. So sacroiliac joint is अपने लो बैक में ही एक साइड में जॉइंट होता है, वहां पे भी अगर पेन हुआ तो वो कई बार ऐसे नीचे तक आता है, बट दैट इज नॉट नेसेसरीली ड्यू टू sciatica. And then there is peripheral nerve entrapments. मतलब अगर कोई और नर्व कहीं और दब रही है तो भी थोड़ा बहुत सिमिलर पेन आता है. So first of all, we need to stop telling कि my leg pain is sciatica, because there is a huge, there are a vast causes for sciatica as well as whatever leg pain you are feeling. Okay, so we'll move on to the causes now. द फर्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन जो आई थिंक यहाँ पे सबने ही सुना होगा, दैट इज हर्निएटेड और बल्जिंग डिस्क. मतलब कि गैप कम हुआ है, जो बीच का गद्दी है वो दब रहा है. सो दैट इज व्हाट द डिस्क बल्जिस. तो वहां पे जहाँ से साइटिक नर्व निकलती है वहां की अगर गद्दी थोड़ी सी बाहर आई हो या गैप कम होके दब रही हो तो द नर्व गेट्स compressed in that. The second one is spinal stenosis. So spinal stenosis में क्या होता है कि जो वर्टेब्रा के बीच का सर्कल होता है जहां से नर्व पास होती है, that diameter gets reduced, जिसकी वजह से the nerve gets compressed. Then the next one is degenerative disc disease कि वही more or less like herniated disc कि मतलब अगर डिस्क या वर्टेब्रा का डीजनरेशन हुआ हो तो ऑफ कोर्स द नर्व का भी कंप्रेशन आता है उसमें. देन द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस. स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में ऐसे होता है कि एक वर्टेब्रा जो दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली होना चाहिए वो थोड़ा आगे शिफ्ट होता है.
और जैसे ही वो आगे शिफ्ट होता है, आगे से पास होने वाली नर्व इट गेट्स इरिटेटेड. सो इफ द नर्व इज sciatic nerve, you will have sciatica. Then the next one is pyriformis syndrome. ये बहुत बार अनडायग्नोज जाता है बिकॉज pyriformis syndrome का कॉज बैक में नहीं जाता, इट गोज नियर द अपर थाई रीजन. सो पायरिफॉर्मिस एक मसल है थाई में, तो जब भी उसका टाइटनेस होता है, वहां से जब भी साइटिक नर्व पास होती है, इट गेट्स प्रेस्ड इन बिटवीन. सो अगर तुम साइटिका को ट्रीट करते रहोगे, अगर पायरिफॉर्मिस को अगर हमने ट्रीट नहीं किया, तो योर इश्यू वोंट गेट रिजॉल्व. Okay, then the last one is trauma और इंजुरी, कि मतलब कोई फ्रैक्चर ही हुआ, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ या लंबार फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से नर्व डैमेज हुआ, तो इट गिव्स sciatica. Okay, are everyone with me? Yes. Dr. Sally, I just wanted to Yes. ask in this कि herniated disc जैसे आपने कहा है, ये Yeah. herniated disc कौन से लेवल पे या फिर हर लेवल पे अगर बल्ज हो तो क्या sciatic nerve compress होती है? ओके, सो साइटिक नर्व एग्जैक्टली निकलती है L4 वर्टेब्रा से. सो उसके ऊपर अगर ये हुआ तो जरूरी नहीं है कि साइटिका ही हो, या उसके नीचे हुआ तो इट मे हैपन कि साइटिक नर्व कैन गेट कंप्रेस्ड एट एनी लेवल. ओके, L4 से लेके S3 ये जो वर्टेब्राज है, वहां तक वो सारी जगहों से साइटिक नर्व ओरिजिनेट होती है. सो इट कैन गेट कंप्रेस्ड और इरिटेटेड एनीवेयर थ्रू दैट कोर्स. राइट. सो वही डिस्क बल्ज अगर पर्टिकुलर साइटिक नर्व रूट्स के ऊपर है तो ही हमें साइटिका का पेन होगा. या Right. डेफिनेटली. Okay. Okay. So these are like the technical causes of sciatica. Now we'll move on to कि आपके रेगुलर लाइफ में कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से you may be triggering your sciatica. Okay. So the contributing factors. The first and foremost and most common one is the poor posture. कि आजकल इसीलिए sciatica इतने यंग लोगों में दिख के आता है because of the bad posture while sitting. कि you have to support your back, you have to give a good strength to your core muscles, जिसकी वजह से your back will be strong enough to support all the vertebrae and उसका आगे का sciatica ना हो. And the second one is sedentary lifestyle, just like जो मैंने अभी बोला कि जो desk jobs होते हैं ये सब की वजह से. देन ओबेसिटी की वजह से भी जो अनड्यू प्रेशर आता है स्पाइन के, उसकी वजह से भी साइटिका हो सकता है. देन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, लाइक कुछ जॉब्स में वर्क्स में इट रिक्वायर्स लिफ्टिंग हैवी थिंग्स, तो अगर प्रॉपर मैकेनिक्स फॉलो नहीं हो रहे वो लिफ्टिंग में, देन डेफिनेटली यू विल हैव इश्यूज ऑफ बैक पेन एंड साइटिका. देन प्रेगनेंसी में भी जो पोस्चर नेचुरली जो प्रेगनेंसी में चेंज होता है, उसकी वजह से भी द नर्व्स गेट कॉम्प्रेस्ड. एंड इवन डायबिटीज में द पेशेंट इज ऑलरेडी प्रोन टू एनी नर्व इरिटेशन. नर्व्स गेट सेंसिटिव ड्यू टू डायबिटीज. ओके, सो नाउ लेट्स डिबंक अ फ्यू मिथ्स, ओके, जो आज तक हमने सुने हुए हैं, एंड आई लेट यू नो कि मतलब क्या एग्जैक्टली द फैक्ट इज. So the first one is sciatica is a disease. No, sciatica is not a disease. It is a symptom. There is always some underlying cause for sciatica. Then bed rest is the best treatment. In severe cases, maybe yes, but prolonged अगर rest रहा तो it worsens the condition. जो मूवमेंट है, जब भी मूवमेंट होती है, जब भी हम मूव करते हैं, स्पाइन मूवमेंट होती है, दैट इज व्हेन योर डिस्क गेट्स न्यूट्रिशन. So prolonged rest can actually worsen your condition. Then only older adults get sciatica. ये काफी पुरानी चीज है कि मतलब अभी के ओल्डर एडल्ट्स में डेफिनेटली होता है बिकॉज ऑफ डीजनरेशन, बट अभी यंगर पॉपुलेशन में भी इतने सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हमने देखे वो प्रेवलेंट है, सो इट कैन अफेक्ट एनी एज ना. Then surgery is the only cure. Not at all. It is not the only cure. Many cases they improve with physiotherapy and conservative care from the orthopedician.
then sciatica affects both legs equally. It doesn't. It usually affects only one leg, like, because if the disc is whichever side the disc is bulging out, वहां का अगर नर्व कंप्रेस हो रहा है तो वो लेग में सिम्टम्स आते हैं. Okay. Okay. So now that we have debunked a few myths and all, let's move on to the treatment strategies. Like I said, ki how we as physiotherapists can help you. Okay. So the first one is pain relief and inflammation control. So pain relief में we use modalities like TENS, ultrasound है, hot cold therapy है. Okay, then restoring mobility, because जब भी नर्व पूरा अगर टाइट हुआ है तो we need to regain the mobility of the nerve through stretching and mobilization. There are nerve mobilization techniques as well जिसमें हम जॉइंट नहीं बल्कि नर्व को मूव करते हैं टू फ्री द नर्व ऑफ एनी इरिटेशन. Then strengthening the core and back muscle, this is very important because it is like a support system to your back. अगर बैक के जो आसपास के मसल्स है वो स्ट्रांग है तो दे विल हेल्प द वर्टेब्रा एंड द डिस्क टू स्टे इन प्लेस. अगर कोर वगैरह वीक है, बैक वीक है, तो the disc is going to bulge out and it will compress the nerve. Then postural ergonomics training, we have to follow a balanced posture, a good sitting posture. जो भी तुम्हारा जॉब है, like ergonomics training जो है mentioned है. So whatever your job is, there are always safe and correct techniques to do it. अगर sedentary job है तो sitting postures आते हैं. अगर lifting वाला जैसे हमने देखा था कि अगर लिफ्टिंग वाला कोई जॉब है तो देर आर करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक्स की इट नीड नॉट बी जनरलाइज्ड कि अरे नहीं इसमें पेन होता ही है. नहीं, इट नीड नॉट बी द केस. यू कैन टेक प्रिवेंशन strategies for that. Okay, then preventing reoccurrence. So this is the point जहाँ पे हम लोग we suggest lifestyle modifications like proper ergonomic. आपको चार्ट वी प्रोवाइड कि उसमें कि ये करना है, ये नहीं करना है, जो भी आपके वर्किंग कंडीशंस है उसके अराउंड भी प्लान अ ट्रीटमेंट कि आपको वो रिकर ना हो बाद में. राइट. सो डॉक्टर साले, आई थिंक काफ़ी टाइम हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पे वो लोग हमेशा फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं विद साइटिका पेन. वो रीअकरेंस का प्रेवलेंस आजकल बहुत ज़्यादा है. सो मैं बस इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूँगी. जैसे हमने अभी डॉक्टर साइली ने हमें बताया कि सायाटिक नर्व का सायाटिका इज बेसिकली अ सिम्टम. इसका मतलब यही है कि अगर आप साइटिका क्योर कर रहे हो तो आप एक सिम्टम क्योर कर रहे हो. आपने अभी तक अंडरलाइन कॉज डिटरमाइन नहीं किया है, ना उसको ट्रीट किया है. इसके वजह से ये सिम्टम रीअकर हो रहे हैं. जैसे हमने देखा सायाटिका के ये जो सिम्टम्स है वो यूजुअली हमें लो बैक से बटक से लेके पोस्टीरियर थाई से लेके अप टू द एंकल आ सकते हैं. बट कंपल्सरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही लाइन में आए. कभी कभी हमें लेग पेन भी ज्यादा लगता है देन द लो बैक पेन यूजुअली इन सायाटिका. इसका मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर एरिया में सायाटिका का कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है. ऑल्सो जैसे हमने देखा कि सायाटिका ये एक सिम्टम है. हर चीज या हर लेग पेन भी सायाटिका नहीं हो सकता, क्योंकि काफी और भी ऐसे चीजें हैं जो सायाटिका जैसा पेन देती है. जैसे कि डॉक्टर साइली ने मेंशन किया था, शायद हमें हिप आर्थराइटिस हो, नी आर्थराइटिस हो, या फिर काफी अलग नर्व्स है जो कंप्रेस होने के बाद भी पोस्टीरियर लेग पेन देते हैं, लेकिन वो सायाटिका के अलावा भी हो सकते हैं. प्लस हमें ये भी पता है कि वैस्कुलर कंडीशंस, अगर हमें कहीं पे भी सर्कुलेशन इश्यूज है तो शायद दैट आल्सो कैन बी अ इशू दैट वी हैव. सो मेकिंग यू ऑल अंडरस्टैंड दैट हमें अगर सायाटिका हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें इम्पोर्टेंट है उसका मेन डायग्नोसिस देखना. ठीक है, हम जान सकते हैं सबसे पहले कि हमें सायाटिका है या कुछ और है. एंड अगर सायाटिका है तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि वो क्यों है. जैसे कि ये सायाटिका सिर्फ एक सिम्टम है, इट इज नॉट अ कंडीशन. आई थिंक वी कैन गो अहेड विद दिस नेक्स्ट स्लाइड.
So now that you have gotten, I hope everyone has gotten a brief idea about what sciatica is, क्यों होता है, and क्या कर सकते हैं उसके लिए. If there are any questions, you can put in the chat box. So now this is a questionnaire. We at Precise Care we have formulated this questionnaire. So first of all, this questionnaire is not a diagnosis. It is just a heads up कि आपको sciatica हो सकता है ऐसे. So these are 10 questions, and if you tick yes for more than 4 questions, you probably have sciatica. So anyone for the participants who might be interested in taking the questionnaire with me? Anyone who is experiencing any kind of pain like sciatica can be a participant. So we will guide you if this is a sciatica pain or a different pain. Anyone who would like to participate? I can do it. Lay Pathak, I would like to ask one question. Yes, Yeah. yes. हाँ, तो आई विल आस्क इन हिंदी. जैसे साइटिका एग्जैक्टली हमें पता नहीं होगा, लेकिन जो नर्व हमारे स्मॉल फिंगर से लेके काफ से लेके जो हमारे बटक तक आती है, और उसका जो पेन होता है वो रिगरस होता है रात को सोने के बाद में. तो आपने अभी ऐसे बताया कि पोस्चर्स आल्सो उसको ये करते हैं, तो उसके लिए या उसका पेन नहीं होने के लिए सो विच टाइप ऑफ पोस्चर we have to sleep, or what is the medication for that? Okay. So, ma'am, sleeping maybe many patients experience sciatica because जब भी हम सीधा लेटते हैं like पीठ पे, it is called supine lying. तो अगर वैसे लेटते हैं तो the nerve gets stretched throughout its course. तो एक चीज आप कर सकते हो रिलीफ के लिए while lying कि आप नी के नीचे पिलो रख सकते हो, तो उतना वो नर्व हल्का सा रिलैक्स होता है. So this is a modification you can try in your sleeping posture, ma'am. Yeah, I got it. The second related question only कि जिनका थोड़ा सा हेफ्टी वजन ओबेज होता है, तो वो स्ट्रेट पोस्चर में भी उनका कंप्लीट ये जो है बॉडी है वो सरफेस को टच नहीं होता है. सो वी गेट ऑब्स्टिकल्स फॉर टचिंग दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो द पेन कैन अकर. Yeah. सो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? ओके, सो अगर आप नी के नीचे पिलो रखोगे तो उसमें भी आपका जो बैक, आई एम अज्यूमिंग कि आपका लोअर बैक का जो कर्व है वो टच नहीं हो रहा होगा ग्राउंड को, बेड को. आई थिंक यू आर सेइंग यस. या. तो जब भी आप नी के नीचे पिलो रखोगे तो डेफिनेटली द साइटिक नर्व विल गेट रिलैक्स्ड. अगर ये सीधा लेटने में ही आपको कंफर्टेबल नहीं है, देन यू कैन टर्न ऑन योर साइड and also place a pillow between your legs. तो Yes. उसकी वजह से भी you can get relief in the sleeping posture. Then there are a few exercises जो इसके लिए कर सकते हैं, बट उसके लिए कैसे एक पोस्चर असेसमेंट लगता है कि आप जो बोल रहे हो कि आपका जो लोअर बैक का गैप रह जाता है बिटवीन द बेड, तो उसके लिए एक पोस्चर असेसमेंट करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन लेट यू नो कि ये गैप कम करने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो. Okay. Yeah. Got it. Yeah. Thank you. Welcome. So anyone would like to take the questionnaire? Hello, ma'am. I would like. Yeah, I can take it. Question. Okay, we have 2 participants. So we'll go with Swati ma'am first. Yeah. So the first question is, do you feel pain that radiates from your lower back to leg? Yes. Okay. Is the pain more prominent in one leg? Yes. Do you is there any feeling of reduced sensation उस leg में? Oh, I have not noticed it as of now. Okay, then we'll consider it no. Yeah. Then is your leg pain worse than your back pain? So my back pain is more. I mean, near the. Okay. Yeah, near the hip area. Yeah, so it's a no. Does your pain increase on bending forward? Is bending forward difficult for you?
Uh, Standing is difficult, rather. Okay. Okay. Yeah. So we okay. So that's a no. Bending forward is a no. Then do you feel weakness or heaviness? जैसे भारी भारी सा लगता है पैर? हाँ. Okay. Then stretching से आपको better लगता है अगर Yes. stretch वगैरह किया? Okay. Then have you noticed any difficulty in walking or standing for long periods? Yes. Yes. Standing becomes a problem. Yeah. Okay. Then how long have your symptoms persisted? Is it more than weeks? Yes. Okay. And is it difficult to sleep or work due to your leg or back discomfort? Hello? Yeah, it is difficult at times, I said. Okay. ठीक है. Then your score is 7 on 10. So your symptoms may be related to sciatica. It goes towards sciatica. So you can get in touch with us and we can schedule a assessment session for you, and we can get to the root cause of your pain. Sure. Sure. Yeah. I can do that. Thank you. Yeah. Welcome. Anyone else? Yeah. Bhagyashri is willing to take the questionnaire. So yeah, Bhagyashri, should we move on with the questionnaire? Yeah. Hello. Hello. Am I audible? Yeah, you are. Yes. Then start with the Okay. So Bhagyashri, does your pain radiate from lower back to the leg? yes. Okay, that's 1 point. One yes. Then is your pain more prominent in one leg? Only in the left leg. Okay. And is there any reduced sensation in the leg? Bhagyashri? Yeah. No, I don't experience any difference in the sensation. Okay. Sure. Then is your leg pain worse than your back pain? No, my back pain is worse than my leg pain. Okay. Then does your pain increase on bending forward? No. Okay. Then is there weakness or heaviness in your leg? No. Okay. Does stretching make you feel better? Yes. Have you noticed any difficulty in walking or long term standing? In fact, prolonged sitting aggravates my pain. Okay. Yeah. Have your symptoms persisted for more than a few weeks? Yes. In fact, it's like symptoms are there I think for more than 2 or 3 months. Okay. And is it difficult to sleep or work due to the pain? Yes, like if I sit for prolonged period of time and Yeah. if I sleep on the same side, that is left side lying is difficult, but Yeah. otherwise it is fine. Okay. So, Bhagyashri, even your symptoms are like consistent with the sciatic pain. We'll suggest you to get yourself evaluated for the cause and get it treated as soon as possible. Definitely, I would like to do that. Yeah. So, yes, one thing that we might have noticed with Bhagyashri ma'am and Swati ma'am is उनको sitting long time के लिए भी pain होता है. तो yes, even that is one of the symptoms of sciatica कि जब भी इतना लॉन्ग पीरियड के लिए आप बैठे रहते हो, स्पाइन मूव नहीं होता है, डिस्क में कुछ मूवमेंट नहीं आता है, इट गोज स्टिफ, द मसल्स आल्सो गो इनटू स्टिफनेस. सो जब भी सिटिंग से जब भी आफ्टर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम जब भी आप उठने की कोशिश करते हो तो इट डज फील लाइक अगर कुछ लॉक हो रहा है या फिर तुरंत स्ट्रेट नहीं हो पा रहे हो. सो यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स. Okay, so should we move on from the questionnaire? Anyone else would like to take? I think we can go on to the next slide. Okay. If anyone wants to take the questionnaire with us, you can join in the WhatsApp group. Yeah. इसका link मैंने chat box में भेजा है. We will be able to help you more with that. Yes. Okay, we can move on then. Sure. Then
Now let's discuss the part to your relief, like how will you get relief from your sciatica. First of all, understand that every leg pain is not sciatica. Detect the root cause, like we saw कि कुछ भी root cause हो सकता है. जहाँ भी sciatic nerve अटक रही है वहाँ पे पेन होके वहां से आपको sciatica ओरिजिनेट होता है. तो डिटेक्ट द रूट कॉज ऑफ इट. कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी और वजह से आपको वो पेन हो रहा हो, लेग पेन, एंड यू विल कीप ट्रीटिंग इट फॉर sciatica, इट वोंट वर्क. तो कुछ और रीजन है तो गेट दैट डायग्नोस. देन एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो कि बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग से, जैसे स्वाति मैम एंड भाग्यश्री मैम को था, तो प्रोलॉन्ग सिटिंग है, कुछ पुअर लिफ्टिंग टेक्निक्स है. तो आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स, करेक्ट दोज, एंड देन गो फॉर अ गुड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसमें आपको गाइडेड प्रोग्रेसिव केयर प्रोवाइड करे. ठीक है. Then yes, the few tips for you is avoid prolonged sitting, कि 30 to 45 मिनट्स के ऊपर नहीं ही बैठना है. आई हैव हर्ड सो मच कि नहीं 2-3 घंटा मीटिंग चला तो आई वॉज सिटिंग इन द सेम प्लेस. डोंट, जस्ट मूव अराउंड, या फिर बेड में ही, देर आर अ फ्यू एक्सरसाइजेस आप बेड में ही कर सकते हो, सिटिंग में ही कर सकते हो. टेक अ राउंड, जस्ट स्टैंड अप एंड सिट डाउन, कुछ नहीं तो. देन डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, कि अगर नमनेस है, कि सेंसेशन रिड्यूस्ड लग रहा है, टिंगलिंग लग रहा है, कुछ ऐसे प्रिकिंग लग रहा है. बहुत लोगों को फुट पे लगता है कि प्रिकिंग सेंसेशन है, पिंस नीडल्स जैसा. तो दीज आर लाइक द रेड फ्लैग्स कि आपको विजिट करना ही चाहिए डॉक्टर को. देन फॉलो एन आइडियल सिटिंग पोस्चर. ओके. Yes, the right relief starts with the right assessment, and we are here to provide you with it. So, any questions? We are open for it now. Dr. Saili, that was a very good presentation for understanding what sciatica is. And मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग को एटलीस्ट ये तो पता चल गया रहेगा कि हमें sciatica कैसे पता करना है कि वो है कि नहीं. एंड अगर आपको sciatica है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड इट्स रूट कॉज. हम मेजरली ये रूट कॉज को जब तक ट्रीट नहीं करते, हमें ये sciatica के सिम्टम्स बार बार आ सकते हैं. So in order to avoid its reoccurrence, we have to see to it कि हमें ये sciatica के root cause को पहले treat करना है. So अगर किसी को कुछ questions हो तो वो अभी पूछ सकते हैं, या फिर if you want you can type in your chat box. Also हमारा WhatsApp group भी on है, अगर आप उसमें भी डालना चाहते हो तो वहाँ से भी हम आपको आंसर कर देंगे. ऑल्सो मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ, जिन्होंने रजिस्टर किया है, अगर उनको एक हमारे तरफ से फ़ोन कॉल जाएगा. अगर आपको sciatica जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो हमारे साथ एक असेसमेंट बुक कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट वी कैन डायग्नोस योर रूट कॉज, एंड उसके हिसाब से आपको हम आपका ट्रीटमेंट प्लान भी बता देंगे. ठीक है. सो डू लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. सो हमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी आए थे. सो डॉक्टर साइली, इफ यू कुड आंसर दोज राइट नाउ तो वो सबके लिए बेटर हो जाएगा. सो एक जन ने लिखा है कि इज sciatic nerve pain in relation to rheumatoid arthritis of the knee or the hip? Okay. So this is a good question. So हमने देखा है कि आर्थराइटिस वगैरह में, अगर if your rheumatoid arthritis is affecting your lumbar spine, or even your muscles have gone into tightness because of it, and वहाँ पे अगर nerve compress हो रहा है, then yes, rheumatoid arthritis can also cause sciatica. But अगर वो मल्टीपल जॉइंट पेन जैसा अगर पिक्चर दे रहा है कि हिप में भी पेन हो रहा है, नी में भी पेन हो रहा है, तो इट माइट नॉट बी sciatica, इट जस्ट माइट बी योर मसल्स गोइंग इनटू टाइटनेस. सो या. Okay.
So there's another question asked: Is can issue of sciatica can be removed forever? Yes, definitely. But the thing is ki definitely it can be removed forever, but you need to be consistent with your treatment, because any treatment, especially a physiotherapy treatment, it does not end at pain relief. It has to go into the strengthening phase. जैसे हमने देखा causes में और factors में कि core strength. If पेन रिलीफ डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पेन रिलीफ होके अगर आप रुक गए वहां पे एंड यू डोंट स्ट्रेंथन योर मसल्स, यू आर ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ रिकरिंग पेन. सो बट इफ यू मेंटेन अ गुड प्रोटोकॉल ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड अगर एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर रहे हो तो यस डेफिनेटली sciatica कैन गो फॉर एवर. Okay, I think that's the most important Yeah. point that you mentioned, that it is very, very important to, not just stop at pain relief, but to do strengthening. जैसे कि हम देखते हैं कि sciatica में हमें मसल वीकनेस भी लगता है, एक स्ट्रेचिंग पेन काइंड ऑफ भी लगता है. सो यूजुअली ड्यू टू दिस पेन, ड्यू टू द टाइटनेस, मसल का वी स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका रहता है. सो until unless we strengthen it, the chances of it becoming tight again are very, very high. तो Yes. जितना हम स्ट्रेंथनिंग करके मसल का हेल्थ अच्छा रखेंगे, उतना ही लेस चांसेस है कि वो मसल वापस टाइट होकर नर्व को कंप्रेस करेगा. ऑल्सो जैसा साइटिक का नर्व रूट है, वैसे मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल मसल्स हैं जो टाइट होने पे साइटिका सिम्टम्स देते हैं. ठीक है, तो हमें नॉट जस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज पेनिंग, but the entire nerve root or the nerve course through which the sciatica runs or the sciatic nerve runs has to be tackled in order to completely relieve the sciatica muscles. And very, very important, एक और चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी थी. एज मैंशनड, बहुत टाइम पे स्लीपिंग सुपाइन इंक्रीजेस द सिम्टम, जो कि हमें ऐसा लगता है कि यार मैं सीधे सो रही हूँ तो मुझे आराम मिलना चाहिए. तो सिम्टम इंक्रीज कैसे होता है? सो वही एक इम्पॉर्टेंट चीज है. जब आपका बैक आर्च अगर ज्यादा हो एंड इट इज नॉट टचिंग द बेड व्हेन यू आर लाइंग डाउन, तो अगेन दिस आर्च इज क्रिएटिंग अ कंप्रेशन एट द ओरिजिन ऑफ द नर्व रूट्स. ओके, सो जब ये टाइटनेस सुपाइन पोजीशन में जाने के बाद ये जब मसल टाइट रहता है, तब आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं. इसके वजह से यू डोंट फील रिलीव्ड व्हेन lying down. The another best method that Dr. Sally mentioned was taking a pillow under the knee, or if that is also not suitable, a sideline position. So yeah, different positionings are very, very important again to relieve the tightness at the spine and to relieve the muscles underneath. ओके, सो अगर ये मसल्स इन अ स्ट्रेच्ड पोजीशन रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो अगेन लाइंग डाउन विल बी अ गुड रेस्टिंग पोजीशन, बट नॉट नेसेसरी लाइंग डाउन इन सुपाइन. सो अगेन यू हैव टू बी, मतलब आपको जितना हो सके उतना स्पाइन से लेके पूरे लेग तक हर एक चीज को इन प्रॉपर अलाइनमेंट रखना, इन प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ रखना है, ताकि ये सिम्टम हमें बार बार नहीं आए. ओके, आई थिंक आपका मेजर कंसर्न, जैसे कि बहुत लोगों ने लिखा था कि दे वांट टू अंडरस्टैंड एंड गेट अ क्लैरिटी अबाउट साइटिका, या उसके प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं. आई एम होपिंग दिस ऑल इज क्लियर. अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो हमारे पास और 10 मिनट्स है, वी कैन डिस्कस इट विथ यू. और कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली पूछिए. ओके, आई थिंक इफ यू फील लाइक अगर आपको बाद में डाउट्स आए या कुछ भी हो, तो प्लीज ज्वाइन इन द ग्रुप अंडरस्टैंडिंग साइटिका. वो ग्रुप में हम ऑल्सो फ्यू टिप्स एंड एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचेस बताने वाले हैं जो आपको साइटिका सिम्टम्स के लिए हेल्प करे. पर उसके पहले डेफिनेटली वी विल ऑल्सो बी असेसिंग योर सिम्टम्स टू अंडरस्टैंड कि ये साइटिका है या नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टे इन टच, एंड आपको ग्रुप के द्वारा हमारे तरफ से काफ़ी चीज़ें मिलेंगी ऑन अंडरस्टैंडिंग साइटिका. So I thank you all for attending. I thank Dr. Saili Thank for you, Dr. Lai. sharing this insights with us, beautiful insights with us.
And thank you all for attending. And we also will be sharing a feedback form. Do give us the feedback for the session. And also, if you want to know more about any condition, we are happy to conduct a webinar on the same. Yeah. Okay. So thank you. फीडबैक में आप ये भी बताओ कि और कौन सी चीजें हैं जिस पे हम आपको वेबिनार एक्सपेक्टेड है, तो वी कैन ऑर्गेनाइज दैट वे. Yes, definitely. Okay. Thank you all for attending the Excuse webinar. me, I would like to ask more on slip disc, because some of you in my family members are suffering from that, and myself also was having. Now I don't have that pain and all, but why this slip disc pain is happens, and how, means what are the symptoms for that? That I would like to know in future. Okay. Sure. Sure. Thank you so much. We will definitely conduct a webinar on that also. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. So I'm ending the meeting now. Thank you everyone for joining. Thank you.